Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again and I continue the chapter of analysis of financial statement. We have of lately been doing cash flow statement, जो एक पार्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. बाकी ये है तो बहुत बड़ा चैप्टर, बट हम लोग एक लास्ट पार्ट पे फिलहाल है. ओके, हमने इसमें क्या सीखा है? लॉन्ग टाइम बैक हमने सीखा है एक वर्टिकल बैलेंस शीट, और मैंने आपको ये कहा था कि ये चैप्टर में आपको पैसे संभालने हैं. पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, वो 3 एक्टिविटीज़ में बटे हुए हैं. एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हर दिन का जो काम होता है उसको कहते हैं ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस. द अदर वन इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड द लास्ट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इन दिस चैप्टर ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट यू हैव टू गेट वन अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड वन अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ये तीनों अमाउंट को जोड़ दो एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ क्वेश्चंस अलग अलग स्टाइल में आते हैं, बट सोल्यूशन यही स्टाइल में बनता है. ओके, सो आई रिपीट, क्वेश्चंस कैन लुक डिफरेंट, सोल्यूशन कैन नॉट. क्यों? मैं सोल्यूशन मेरे हिसाब से क्यों नहीं बना सकता? देखो भाई, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो बहुत, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो बनाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के द्वारा. हु इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड? ये एक ऐसी कमिटी है जो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दीज पीपल आर द टॉप गाइज एज फार एज अकाउंटिंग इज कंसर्न इन इंडिया. ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, और उसमें एक रूल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो बोलता है इंडिया में अगर आप एक कंपनी हो तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसे ही बनवाना है. हम लोग ऐसे बनाना सीख गए हैं. ओके, बनवाना सीख गए हैं. ओके, नाउ लास्ट टाइम we did a question which was based on conal traders. बैलेंस शीट था, इसमें 2 साल दिए जाते हैं. 2 साल होते तो नहीं है, एक होता है ओपनिंग, एक होता है क्लोजिंग. आई रिपीट माई सेल्फ, इवन दो इट सेज 2 years, they are not 2 years, they are actually opening balance, closing balance. whenever you see a बदलाव, if you see 2 numbers, 99% उसमें फ़र्क होगा. 1 रुपये का फ़र्क होगा, 1 लाख का फ़र्क होगा, 1 करोड़ का फ़र्क होगा. इन दिस चैप्टर you have to understand or you have to think, फर्क क्यों हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग क्यों बढ़ गया? फर्नीचर कम क्यों हो गया? डेटर क्यों बढ़ गया? स्टॉक क्यों कम हो गया? शेयर कैपिटल क्यों बढ़ गया? तो वो क्यों का जवाब आपको देना है. हाँ, फ्रॉम व्हाट प्रोस्पेक्टिव? कैश प्रोस्पेक्टिव, और कोई नहीं. कैश प्रोस्पेक्टिव कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीजेस,
व्हाट हैपेंड टू कैश, उसका असर क्या हुआ कैश पे. फर्नीचर डिक्रीजेस, plant and machinery decreases, motor car increases, debtor decreases. There are multiple assets and liabilities. There can be changes in them. But जब वो changes होते हैं, बदलाव होते हैं, परिवर्तन होता है, तो उसका कैश पे क्या असर होता है. Because there are maximum transactions जो कैश आधार पर, बेसिस पर होते हैं. Now this question had this solution which is already done my dear. आप पिछला लेक्चर देख सकते हो. Today we do this one from the following balance sheet of Mr. Anand on 1st April 2018 and 31st March 2019. Again it is opening and closing. Okay, prepare cash flow statement. Okay, देखो when we prepare a cash flow statement कुछ चीजें तैयार होनी चाहिए. Operating activity, investing activity, financing activity, net blank, fill in the blanks. In cash and cash equivalent, what is cash and cash equivalent? cash equivalent होता है मतलब कैश और कैश की नज़दीक की चीज़ें. बैंक भी होता है CACE. What is CACE? Cash and cash equivalent. Bank overdraft. That means in a question when you see cash, तुमको ये लास्ट के 3 लाइन में लिखना है. बैंक लास्ट के 3 लाइन में लिखना है. बैंक ओवरड्राफ्ट जो एक्चुअली नेगेटिव होता है लास्ट के 3 लाइन में लिखना है. यू हैव टू राइट द ओपनिंग बैलेंस एंड यू हैव टू राइट द क्लोजिंग बैलेंस. नाउ इन दिस क्वेश्चन विच आई एम गोइंग टू शो यू, you will see that the opening balance of cash is 4,000. तो you think like this. Hold on, let me show you. सोचने की जगह पे if you see asset side पे cash, opening कितना था 4,000. let me point out. closing कितना है 3,600. तो my dear you may say but sir आप क्वेश्चन के बीच में से क्यों शुरुआत कर रहे हो. क्वेश्चन में कैश या बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर भी होगा शुरुआत वहीं से होगी. तो ये थोड़ा अजीब है, शुरुआत कर रहे हैं एंड से, बट दैट इज व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर. कि भाई तुमको करना क्या है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, एक्सप्लेन करना है कैश कितना आया और कितना गया. एग्जाम्पल, तुम्हारी जेब में कितना था स्टार्ट में, ये कंपनी के जेब में, मिस्टर आनंद के जेब में 4,000. एंड में कितना हो गया 3,600. अरे कम हो गया. तो ये तो आई वुडंट से खुशी की खबर है, बट थोड़ी गम और दुख की खबर है. पैसे कम हो गया ना जेब में. एक मिनट, कम हो गया मतलब डिक्रीज. ओ तो सर पहले तो आप इंक्रीज बोले, क्या करूँगा, उसमें इंक्रीज था तो इंक्रीज बोला, अभी चेंज हो गया तो चेंज तो करना पड़ेगा ना. सो डिक्रीज कितना हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, 400 नेगेटिव ब्रैकेट. सो द नेक्स्ट 5-10 minutes that I'm solving this particular प्रॉब्लम, प्लीज शॉर्टकट लिख लेना याद से ऊपर का. ओके, विच विल हेल्प यू एक्सप्लेन करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में जब चेंजेस होते हैं तो कैश पे उसका क्या असर होता है. तो वो कहाँ पे शॉर्टकट लिख लेना, वेल आपके पेपर पे लिख लेना. वेरी इंपॉर्टेंटली एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 10 minutes आई हैव टू रीच एट -400. व्हाट इफ नहीं सर मेरे को ना 350 आया, देन आई एम वेरी सॉरी, यू आर रॉन्ग. मुझको इफ आई सॉल्व दिस एंड आई गेट 350 और 300 और 399 or 401, I am wrong. I should get 400. There is no unis bis. Accountancy is accurate. You have to get negative, not 400. Sir, मेरे को 400 आया. अरे 400 भी नहीं, negative 400 आना चाहिए. You have to explain in 3 activities: operating, investing, financing. ये 400 रुपया गया किधर? Let's try to explain. The very first point, ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट थे. We normally started with net profit. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके, बट देन वो तो P&L से आता था, प्रॉफिट एंड लॉस. बट सर मैं ऊपर देख रहा हूँ, मेरे को तो दिखता ही नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस. हाँ, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट गिवन, ओके, तो फिर आपकी नज़र कहाँ पे जानी चाहिए, कैपिटल पे. ओके, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन क्योंकि ये मिस्टर आनंद का क्वेश्चन है, इट्स नॉट अ कंपनी क्वेश्चन. ओके, तो नॉर्मली कंपनी में आपको शेयर कैपिटल मिलेगा, यू विल गेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बट यहाँ पे नहीं है. हाँ, तो अभी आप ऐसा सोचो कि अगर आप मिस्टर आनंद हो और आपका कैपिटल था 1,48,000 और फिर हो गया 1,49,000, व्हाट इज कैपिटल? आपका पैसा. ओके, तो अगर मैं आनंद हूँ
मेरा पैसा बिजनेस में था 1,48,000 और फिर बढ़कर बन गया 1,49,000, तो आनंद को तो आनंद होगा ही, बिकॉज ही से अरे सो नाइस, आई हैड पुट 1,48,000, इट बिकेम 1,49,000. क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉफिट. क्योंकि प्रॉफिट ऑब्वियसली थोड़ी बाहर वाले के पास जाता है, आनंद को ही तो आनंद मिलेगा उसका. सो इफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नॉट गिवन, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? फ्रॉम कैपिटल. द कैपिटल हैज इंक्रीज्ड बाय 1,000 एंड दैट इज द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. तो प्लीज नोट, आप भी लिख लो आपकी किताब में, difference in capital. Normally it is difference in profit and loss account, but because this is not a company question, it is difference in capital. It is 1,000. So you first will write the cash at the opening and closing and then the net profit, and now you start from the beginning. Liability side का first item which already हमने discuss किया capital. Second, creditor. क्या हो गया creditor को? देखो ना, 36,000 था opening, 41,000 हो गया, तो मुझे लगता है इंक्रीज हो गया. यस, इंक्रीज ऑफ 5,000. ए तो कैसे लिखे? अरे लिखो ना, इंक्रीज इन क्रेडिटर. वेरी सिंपल, वैसे तो लिखना है इंक्रीज इन क्रेडिटर, बट यू हैव टू थिंक कैश पे उसका क्या असर होता है. क्रेडिटर इज अ करंट लाइबिलिटी. तो इफ यू लुक अबव इन द शॉर्टकट जो मैंने हाईलाइट किया, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इज प्लस, कैश पे उसका असर प्लस होता है, तो मैं नंबर को प्लस, पॉजिटिव 5,000. नेगेटिव होता तो ब्रैकेट में मैं लिख देता, फोटो नहीं ब्रैकेट. नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन. व्हाट डज दैट मीन? लोन, कर्जा लिया है मैंने, क्या हो गया उसको? ये पहले 30 था, बाद में 45,000 हो गया. क्यों हो गया? और लोन लिया रहेगा. एडिशनल लोन टेकन. लोन is a financing activity. It is not operating, it is not investing. Loan is connected to money, and at the beginning 30,000 का लोन था, at the end 45,000 का लोन हो गया. Some of you may say, गलत नहीं होगा सर, इंटरेस्ट भी तो हो सकता है. मैं बोल रहा हूँ गलत नहीं होगा, बट 30,000 का लोन में अगर मैं बोलूँगा 15,000 इंक्रीज हुआ ना, और वो 15,000 इंटरेस्ट है, तो मतलब ये तो कोई बड़ा राक्षस ही होगा जिससे मैंने लोन लिया है, जो 30,000 के लोन में 15,000 का इंटरेस्ट लेता है. तो मतलब वो चेंज, थोड़ा वो रीजनिंग गलत होगा. तो एक बेटर रीजन है कि मैंने एडिशनल लोन लिया, एक्स्ट्रा लोन मैंने लिया है, तो वो कहाँ पर लिखे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग. एडिशनल लॉन्ग टर्म लोन टेकन, कैश कम्स इन, एवरीबडी कैश कम्स इन, तो पॉजिटिव. By this, the liability side is over. Asset side, first item, stock, current asset. क्या हो गया? 25, 22. ओ, कम हो गया. हाँ, 3,000 अगर मैं देख रहा हूँ बराबर से, कम हो गया. Decrease in stock. So I'm writing, and then I'll think कि if a current asset decreases, shortcut says plus. Very simple. मैं तो add करेगा. So करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी के बारे में ज़्यादा आप सोचो मत, क्योंकि वो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कुछ लोगों के लिए. आप ये शॉर्टकट का ऊपर देख लो एंड देन ट्राई अंडरस्टैंडिंग कि कैश प्लस है आया कि कैश माइनस है गया. नेक्स्ट, डेटर 35,000, 38,400 इंक्रीज, आई थिंक 3,400 इंक्रीज. तो आई राइट इंक्रीज इन डेटर एंड देन आई थिंक अगर एक करंट एसेट इंक्रीज होता है तो मुझे क्या करना है? कैश पे नेगेटिव असर होता है. इफ यू कैन नोटिस दैट अबाउट, मैंने वो हाईलाइट किया है. माइनस, वेल वी डोंट राइट माइनस, वी पुट इट इन ब्रैकेट. ओके, सो ब्रैकेट 3,400. नेक्स्ट, बिल्डिंग. वेल है तो कैश, बट कैश तो पहले से डिस्कस्ड हो चुका है ना. बिल्डिंग, क्या हो गया बिल्डिंग को? बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट. उसके नीचे मशीनरी, फिक्स्ड एसेट. उसके नीचे लैंड, फिक्स्ड एसेट. आपको क्या याद रखना है? वेल कुछ याद नहीं रखना, यू जस्ट हैव टू नो कि फिक्स्ड एसेट से कनेक्टेड कोई भी चीज़ होगा तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है. नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स को खरीदोगे या तो बेचोगे. ओके, बिल्डिंग क्या हुआ? 50,000 का बिल्डिंग बन गया 55,000. अभी ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग बोलेगा मैं जिम जाता था, ज़्यादा डोले मेरे पास आए हैं. नहीं, ऐसा कोई मसल वसल बना नहीं है. आपने बिल्डिंग खरीदी है 5,000 का, खरीदी है, तो दैट इज कॉल्ड एज परचेज. तो पैसा तो जाएगा,
Yes, very true. When you buy a building or maybe you construct a building, पैसा तो जाएगा, because पैसा जाएगा negative. Very importantly, many people ना वो 5,000 लिख देते हैं, हाँ सर 5,000 डिफरेंस, बट भाई प्लीज थिंक एज अ कैशियर, कैश आया कि गया, अगर आया तो पॉजिटिव और गया तो नेगेटिव. नेक्स्ट, मशीनरी 80,000 86,000, तो मशीन का वैल्यू बढ़ गया. कैसे बढ़ गया? देख, अपने आप नहीं बढ़ता, हमने नया मशीन खरीदा होगा. नया, जब नया खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली तो वैल्यू तो टोटल की बढ़ ही जाएगी ना. तो जब आप मशीन खरीदते हैं वो भी होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, परचेस ऑफ मशीनरी. इट कैन नॉट गो बिकॉज यू डोंट बाय अ बिल्डिंग एवरी डे, यू डोंट बाय अ मशीन एवरी डे, इट्स योर इन्वेस्टमेंट्स. एंड लास्टली लैंड, ये तो ऑब्वियसली हर दिन नहीं खरीदते हैं. 20,000 का लैंड 30,000 बन गया, कैसे? खरीदा होगा. सिंपल सा बात है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मत करना. अगर एक एसेट बढ़ गया, फिक्स्ड एसेट, तो खरीदा होगा, परचेज किया होगा, तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लिख लीजिए 10,000. दे आर ऑल नेगेटिव 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 बिकॉज कैश इज गोइंग आउट. लैंड वॉज द लास्ट आइटम इन द बैलेंस शीट और कुछ नहीं है. नाउ यू हैव टू गेट 3 आंसर्स, 1,000 for the operating answer, later on the investing answer and then the financing answer. Operating के लिए 1,000 plus 5, 6,000 plus 3, 9,000 minus 3, 4, minus sign है ना. what do you get? 5,600. चलो भाई, फर्स्ट एक्टिविटी का, बहाने का आंसर आ गया. डाउन 5 नेगेटिव minus 6, that is negative 11. I hope minus minus plus होता है, वो तो आपको पता होगा. negative 10, तो वो तो 21,000 आएगा. negative 21, तो that is what I have written. तो ऑपरेटिंग का एक आंसर पॉजिटिव, इन्वेस्टिंग का एक आंसर नेगेटिव. एंड ये तो वेरी सिंपल है, 15,000 पॉजिटिव. देर आर सम स्टूडेंट्स जिनको कन्फ्यूजन होता है, विच इज गलती नहीं आपकी है, मैं अभी थोड़ा और क्लियरली बता देता हूँ. हमको करना क्या है, हमको लाना है -400. वेरी इंपॉर्टेंट, -400 कैसे लेकर आएंगे? देखो भाई, मतलब अगर वो है तो आ जाएगा, नहीं है तो गलत आएगा. 5,600 फर्स्ट आंसर प्लस 21,000 विच इज नेगेटिव प्लस 15,000, you should get equal to -400. एंड प्लीज नोट, आप वो करोगे तो आपको मिलेगा 5,600 minus 21,000, okay, plus 15,000 will give you exactly -400. This is vertically written. आप लोग horizontally भी लिख सकते हो. 1 रुपया यहाँ वहाँ होने वाला नहीं है. Okay, this is one of the questions where you have a decrease in cash and cash equivalent. क्योंकि इसके पहले if I have done around 3 questions, तीनों में increase, increase, increase. Okay, there seems to be a few more questions which are pending in this chapter. I will make sure that I continue this lecture series and finish all those remaining questions जो not just cash flow के साथ जुड़े हुए हैं, but with some other concept that I must have taught in the remaining chapter. But अगर ये explanation आपको समझ में आया, please definitely like the video. Secondly, if you have not subscribed, please subscribe. Not press the bell icon, please do so. There is कोई शुभ घड़ी नहीं है, जब आप प्रेस करो तो शुभ घड़ी बन जाती है. If there are some doubts, आप कमेंट बॉक्स में उसको हमेशा पूछ सकते हो. We will try my best. I will do my best to answer it in the comment box at the earliest possible time. Till the time we meet again, please do take care of yourself, take care of your seniors and juniors, take care of your lovely, lovely family members. They are obviously and always very, very precious. Okay, अपना ख्याल रखना. Good day to all of you. God bless. Bye for now.